Hello friends, welcome back to your channel FAMSIA. Today we have come up with a new personality, Pushpa Vishnolia, among you, and she is a master degree holder from Delhi University. She has worked with couple of companies including Yatra.com. Now she is running her own travel company in Delhi by the name of Double Travels. So let us welcome Pushpa ji on our channel. Welcome Pushpa ji. Hi, hi. Thank you very much for introducing me to the FAPSIA channel, Gurmukh. Thank you so much. You're welcome. So, Pushpaji, we would like to know about your experience with Yatra.com, like how you started and what was the thought while joining over there? Because whosoever is going to join any company, they look for certain factors like job security, job respect, salaries, and more or less, the main thing is job security. Like, are they going to be secure in their job or not? So from all these perspective plus knowledge and the increments level also personal growth. So these are the factors which one whosoever is graduate, undergraduate or after doing a diploma or degree courses they are looking for it. तो आपके अकॉर्डिंग क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यूज है यात्रा.com के साथ आपने काम किया एक लंबे टाइम के लिए तो आप अपने थोड़े से व्यूज हमारे ऑडियंस के लिए बताइए जो कि न्यू कमर्स हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग है अभी लॉकडाउन के बाद जैसे ओपनिंग्स दोबारा से आएंगी वी आर श्योर लाइक बिकॉज ट्रैवल हैज टू बाउंस बैक तो अगर उन्होंने ज्वाइन Mhm. करना है कंपनीज लाइक यात्रा.com तो क्या क्या उनके माइंड में होना चाहिए सो दैट दे आर अवेयर वेयर दे आर गोइंग. Gurmukh, thank you very much. To introducing me for the same channel. Again, I would say now I would say I have worked approximately 5 years with the other companies. It is inclusive of traditional work as well as with the brand name. So the experience was really good. That it makes me to start my travel agency by my own, right? So for the newcomers, I would suggest when you have completed your degree or diploma travel course, any of the travel course, it would be very good like if you'll join the brand names. But of course, like their choosing process and selecting people process is a bit difficult, and especially nowadays. So whatever opportunity you will get, you should join the company, right? Whether it is traditional work, whether it is the brand name. So don't go with the same scenario like whatever it is going to nowadays. It's better you join the work because you are into the learning stage. Of course, if you are a experienced person, so you can apply for the brand names as well. Secondly, if you join the brand name, there would be a difference between a fresher and an experienced person, with which you can define once you join that brand name particularly. If you talk about the yata.com, as I have worked around approximately from 2012 to 2014 to yatra.com. Of course, it's a fantastic company which provides the high class environment to their employees, facilities to their employees. No doubt, of course, salary increments are really good, and growth opportunities are really good. इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने एक न्यू कमर होके ज्वाइन किया है तो आप 2 साल न्यू कमर ही रहेंगे या लर्निंग प्रोसेस पे ही रहेंगे. 6 महीने बाद इन केस यू डिड अ वेरी गुड जॉब, you will transfer to the SME post, then go on. SME के बाद आपका टीम लीडर है या मतलब शिफ्ट कोऑर्डिनेटर है, जो भी वो कर देते हैं. सैलरी Hierarchy इंक्रीमेंट्स, जैसे. Hmm. yeah, so salary increments would be of course yearly, annually only. Then second thing, if you talk about the this traditional work, travel agency जिसको हम कहेंगे, ट्रैवल एजेंसी का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि आप जहाँ पर भी काम करना शुरू करते हैं वहाँ पर आप सिंगल होल्डर होते हैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के. वहाँ पर आपको ही सेल करना है, आपको ही इशू करना है, आपको ही सेंड करना है, और इवन दो जहाँ आपका कस्टमर केयर का कुछ भी इशू आता है वो आपको ही सॉर्ट आउट करना है. ब्रांड नेम्स में पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स होते हैं. तो लर्निंग प्रोस्पेक्टस से आई वुड से कि ट्रेडिशनल वर्क जिसको हम ट्रैवल एजेंसी कहते हैं वो ज़्यादा बेटर होता है. जो आपकी एक नॉलेज जो आपने कोर्स में सीखा, डिग्री कोर्स में सीखा है, जो भी है उसको आप इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ब्रांड नेम्स में आप जब जाएंगे तो आपको एक पर्टिकुलर प्रोसेस मिलता है. वहाँ पर उनका एक काम करने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि वो एक टीम को एक ही पर्टिकुलर काम देते हैं.
वो एक टास्क उनको एफिशिएंटली मतलब फुलफिल करना होता है। तो उसमें एक्सपर्टाइज ज्यादा आ जाती है कि व्हेन यू आर डूइंग वन थिंग ऑन मल्टीपल टाइम्स, तो उसमें आपकी एक्सपर्टाइज ज्यादा आ जाती एग्जैक्टली है। और वेदर इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन आल्सो कि उनका कैलिबर क्या है। तो मतलब यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हैं। ऑडियंस मतलब फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू से आपको अपना कैलिबर पहचानना है कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर। डू यू वांट टू लर्न एवरीथिंग और डू यू वांट टू फोकस ऑन वन थिंग? तो अगर आपको वन थिंग में फोकस करना है तो डेफिनेटली यू शुड गो विद ब्रांड नेम। और इवन इफ यू वुड लाइक टू बी अ मल्टीटास्किंग, देन आल्सो आई थिंक 2 or 3 years or once in a lifetime, so they should work at least with the brands, right? And if they get the opportunity with ब्रांड्स, traditional एग्जैक्टली, travel बिकॉज agency ब्रांड also, नेम्स then में also. Yes, please. एग्जैक्टली, बिकॉज ब्रांड नेम्स में जब आप काम करते हैं, हाँ, सो ब्रांड नेम्स में जब आप काम करते हैं, आपको एक गुड जो कहते हैं ना वर्क एटिकेट्स, प्रोफेशनलिज्म, पब्लिक रिलेशंस, ये चीजें आप ब्रांड नेम के साथ ही समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ट्रैवल एजेंसी में काम कर रहे हैं तो आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं होते हैं। ऑफ कोर्स यू विल गेट टू इंटरेक्ट विद द ट्रैवल एजेंट्स, विद द एयरलाइन पीपल, विद द सो मेनी काइंड ऑफ, बट एक प्रोसेस में जिसमें एक ही काम को 10 लोग कर रहे हैं, और एक कंपनी में जहाँ एक ही काम को एक बंदा कर रहा है, वो एक वर्क सिनेरियो और आपका एक मेंटल स्टेट जो सेट करता है, क्योंकि वहां पर आपको आपके सीनियर से भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। लेकिन ट्रैवल एजेंसी में आप क्या है, आप जो भी करेंगे अपने आप से करेंगे। लेकिन एक वर्क प्रोसेस में ऑफ कोर्स इट इज रियली गुड टू गो अहेड विद द सेम। आपको तो इसमें एसओपीज क्या मिल होता है, जाती हैं, आपको एसओपीज मिल एग्जैक्टली, जाती हैं सर्टेन, आपको सारी चीजें डाउट्स राइटिंग में डाउट्स मिलती हैं। एग्जैक्टली, डाउट्स इमीडिएटली क्लियर होते हैं, ग्रोथ चांसेस होते हैं उस हिसाब से। इवन अच्छी बात एक ये होती है ब्रांड नेम्स के साथ कि आपके जो सजेशंस होते हैं वो ऑलवेज वेलकम होते हैं। आप कुछ भी कहना चाहें ना कि आई थिंक इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, या मुझे ऐसा लगता है पिछली कंपनी में ऐसा होता था, सो दे आर वेरी वेरी ओपन टू एक्सेप्ट एनी चेंजेस। Who? The small traditional travel agency you're नो talking नो, about? इट आई एम टॉकिंग अबाउट द या ब्रांड नेम्स ओनली, क्योंकि ट्रेडिशनल उसमें ट्रेडिशनल वर्क में क्या है, लाइक आप जो अपना काम कर रहे हैं आप ओपन होते हैं कि ठीक है आपको जो वैसा ठीक लगता है आप वैसा कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सेल चाहिए या हमें आपका काम परफेक्टली चाहिए। बट वंस यू ज्वाइन दी ब्रांड नेम, वहां पर आप अपना सिनेरियो के साथ आप जान सकते हैं कि ये चीज कितनी इम्प्लीमेंट है, कितनी एफिशिएंट है, मेरा आइडिया कितना अप ग्रोइंग है। But idea, her idea ko, particularly talking about brands or, multinational company or the, let's say example of yatra.com, there are multiple, हम्म, employees, in thousands employees are working. So implementing each and every हम्म, idea, would you think like it is going to be practically possible? Like, if I am working over there, I am giving idea. If you are working over there, you are giving your हम्म, idea. So every idea implementation, I think there would be a possibility or not. of course. No, no, no. This is the right question you have asked for. Like everybody has right to give the idea, but again, the same scenario, they have a particular team to implement the idea, to judge the idea whether it will be helpful for our company or not. Of course, they appreciate the same thing. Like if I have also given an idea and you have also given an idea, right? If your idea is much better than my idea, and connectively it is there to the process as well, so इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आपको इस चीज के लिए अप्रिशिएट भी करेंगे और वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करेंगे। बट इसमें एक ही चीज होती है कि लाइक बड़े ब्रांड्स में चीजें इम्प्लीमेंट होने में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु विल बी इम्पैक्टेड बाय द सेम। तो उसके लिए बहुत सोचना, बहुत करना, परमिशंस, अथॉरिटीज, ये सब लेना बहुत ज्यादा वो होता है। ओके। तो हमने अभी तक समझा ज्वाइनिंग प्रोसेस, ट्रेनिंग रेगुलर इंटरवल्स में होती है या वंस इट इज बीन ट्रेन्ड, ही हैज बीन असाइन्ड द वर्क, नाउ ही हैज टू डू दिस जॉब? तो इसमें मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि ट्रेनिंग जो प्रोसेस होता है, ट्रेनिंग प्रोसेस इज वन ऑफ द वेरी वेरी गुड एंड प्लस पॉइंट ऑफ एनी ऑफ द ब्रांड नेम्स। ट्रेनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि आप जितना भी आप मतलब सीख सकते हैं ना एक उसमें बड़ी कंपनी में, उतना आप छोटी कंपनी में या किसी ट्रैवल एजेंसी में मतलब इतना फ्रीक्वेंटली आपको हेल्प नहीं मिलेगी। वहां पे क्या होता है, एक काम को सिखाने के लिए आपको पर्टिकुलर ट्रेनर होता है जिसकी नॉलेज भी काफी वास्ट होती है। उसके हिसाब से आप कुछ भी कंपनी से रिलेटेड या कैसी भी कोई चीज पूछेंगे, सो दे विल बी वेरी ओपन टू टीच यू, टू मेक यू लर्न द सेम थिंग्स। तो ट्रैवल एजेंसीज में हमें ये लर्न करने की जरूरत है, लाइक इफ यू आर अ ट्रैवल एजेंट वाचिंग दिस वीडियो,
we have to create a professional environment so that we should also come forward and work like MNCs. Nowadays everything is available on the internet, every system is there. We should make SOPs, we should give that environment to our employees, to our friends who are working with us. हमें अपनी नॉलेज जो एक पास का जो एक्सपीरियंस होता था नॉलेज ना शेयर करना, या नॉलेज पहले उसको सामने वाला बच्चा अगर कोई आया तो उसको 6 महीने 3 महीने टेस्टिंग करने का. So let us not waste Mhm. the time of us and others. Let us make It's bet things exactly, innovative, and let us exactly. make things innovative. Hmm. It's better to make to start work as a team work. जो Yeah. मैंने सीखा है एक ब्रांड नेम्स के साथ काम करके, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कंपनी तभी ग्रो कर सकती है जब उसके एम्प्लॉयज हैप्पी हों, राइट? Right. एम्प्लॉयज हैप्पी होने से आप किसी भी कंपनी में मतलब एम्प्लॉयज आप रखेंगे, एक आपका ट्रेनिंग, हायरिंग, इन सब चीजों में आप कॉस्ट वेस्ट करने की बजाय ज्यादा अच्छा है कि आप चीजों पे फोकस कर सके, राइट? अपनी ग्रोथ पे फोकस कर सके. ओके, तो लास्ट ये हमने अभी ज्वाइन किया, तो अभी हमने ज्वाइनिंग, अंडरस्टैंडिंग, वर्कफ्लोस उसके बारे में समझा. तो while leaving, तो what are the feelings while leaving the companies like yatra.com? क्या फीलिंग्स रही आपकी जब आप एग्जैक्टली. छोड़ रहे थे तो? It was very very sad. I had a very great experience with the yatra.com. I would say I left the company with a very heavy heart. So and no doubt, like, there is no pressure why you are going, why you are leaving. In case it is in their budget, they'll increase your salary to stay in, like, to retain yourself. And it is something very good, I would say, like, के काम करने के लिए तो देखिए कोई भी कंपनी छोटी या बड़ी नहीं होती, बट इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप बड़ी कंपनी के साथ जाते हैं तो द एनवायरमेंट विच मेक्स यू, अगर आप बाद में कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, सो आई थिंक एक ब्रांड नेम के साथ जिसने काम किया है वो एक अच्छा बॉस जरूर साबित हो सकता है. Okay. Thank you so much for giving us such a great insight of your working with yatra.com and all. So hope our viewers have learned a lot and now they will be capable enough to take their calls, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अभी कॉलेजेस में लास्ट सेमिनार में या रिसेंटली उन्होंने अपने सेमिनार्स फिनिश किए हैं, तो मतलब दे आर लुकिंग फॉर सम एडवाइस लाइक व्हाट इज गोइंग टू बी देयर इन द ट्रेडिशनल कंपनी, व्हाट इज गोइंग टू बी देयर इन द मल्टीनेशनल कंपनी, how they are going to cope up. So I think now this video stands the best for them, and it is going to give them the lot of things to take the final call and decide where they should go, and they should perform well, do something good, innovative for the travel industry, so that we should bounce back in much better way and in a बेटर वे. speedier way. So thank you so much, एग्जैक्टली. Pushpa ji, for giving us time and sharing your views. So friends, if you have not subscribed to this channel or follow this channel, just do follow, subscribe, like this video if you have liked. If you have any comments, any questions, do write to us. We will come back with one more video like the same. Till then, thank you so much. This is Gurmukh Singh signing off.